Welcome to Addicts Superfi Championship 2025. First delivery and such a marvelous cover drive. 4 runs. Great way to start by Dev D. Dev D has an extra D. D for dedication, D for determination, D for devotion, D for dynamism. And what a wonderful shot, piercing the gap between the two fielders. Score starts with 4 runs. Right arm round and will be given wide. Score 5. It's an 8 overs encounter. Forward defensive push and no run. Excellent comeback. And that's an easy catch. And first wicket gone. And this is -5. Yes, very important thing is your 8th over should commence at the stroke of 25th minute. If not, then two players would be removed. Dev D wanted to go for a big heave and gave an easy catch. Oh, that's a submarine ball keeping low. Akhil wanted to play it on the offside and misses it. Zero for one. Excellent over by end of the first over and great justice done. We saw boundary, but then we also saw -5. You are watching this Addicts Superfi Championship 2025 live on SSS Live YouTube channel. You can also catch up with all the live action on Creek Heroes app. All you got to do is download the app and type in Addicts Superfi Championship 2025 and stay connected. So a fruitful over and we commence the next over. Sarfuddin Sheikh will bowl to Warshid, who's the captain, and he has a lot of work to do. Tossed it up high and will be given wide. So extra run, extra ball, 1 for 1. Left arm round the wicket. That's a fantastic shot. Finally stopped at the boundary line. And almost a boundary saved. Savings of 3 runs. A run saved is a run scored. 2 for 1. Wide outside the leg stump. 3 for 1. Now that's a powerful strike, and this is the first 6. The hot shot. Better Akhil. My name is Akhil. I am here to kill. You just chill. 9 for 1. On drive in the gap. Go for single. Score in double figures. 10 for 1.
Sarfuddin Sheikh bowling an expensive over. Warshid goes for the straight drive and takes a single. Strike rotation happens, and that's a good sign for Kandari Kings. Another good drive, good attempt to stop the ball, but can't prevent a single. Tej was the fielder, 12 for 1. Remember, the score was 0 for 1 at the end of first over. Now it's 12 for 1. Bending on his knees, trying to play it sideways, and they'll go for 2. That's what you got to do. Convert singles into doubles, doubles into triples. And score at the end of the first over reads 14 for the loss of 1 wicket. Warshid Punamia not out on 4 of 3. Akhil Nambiar not out on 8 of 6. Sharfuddin 1 over 14 runs. Abhishek Kadam 1 over 5 runs and 1 wicket. Now comes the skipper, Danish. Akhil has shown good stroke play so far. And they got to keep hitting occasional boundaries and sixes in every over. Danish to bowl the third over. Full toss ball, and this will be a gigantic 6. Shot of the evening. Oh, that's a direct hit towards the stumps, but Akhil made his ground. 21 for 1. We are in over number 3. Although it was a shaky start, now they are consolidating. Wide outside the off stump, deviating away from the right hander and given wide. 22 for 1. Another wide. Beautiful ground stroke across the green carpet. 24 for 1. Warshid looks confident. Akhil looks dangerous. All monsters, they are in need of a wicket here. Played with soft hands, a risky single, but finally they are home. Oh, that's an easy catch, and Warshid succumbs to the pressure created by Danish. A captain takes wicket of another captain, taken beautifully couple of centimeters above the ground level, and wicket number 2 falls. Twenty-five for 2,
as Jainam arrives. First lefty batter of the evening, and is putting a handkerchief on the handle of the ball. Handkerchief forms the part of playing equipment. Easy catch in the slip, and Jainam gets out on zero. Jainam gets out on zero, and Danish becomes hero. Danish has a great track record in tough championships, and he's living up to his expectations. 3 overs, 25 for 3. Uh, yes, yes. I think it's Dhaval. Dhaval. Drupad Patel. So that's how you get from the horse's mouth. Drupad Patel has played 116 matches so far. Sarfuddin Sheikh 1 over 14 runs. Danish Farooqi 1 over 11 runs and 2 wickets. Arpan comes into bowl. Remember, if you don't start your 8th over at the stroke of 25th minute, then your 2 players out. Arpan bowling to Akhil Nambiar. Nambiar has played a sensible inning so far. With the help of 2 sixes, he is not out on 16. Strike rate of 177.78. Cross-batted shot and a single. 26 for 3. We are here at JVPD Turf, Juhu, Mumbai, and you are watching this tournament live on SSS Live. Addicts Super 5 Championship 2025. 5 teams, 1 dream. Drupad Patel not able to judge the bounce. Dot ball. 26 for 3. Kandari Kings won the toss, decided to bat first. That's up in the air, and that's a box out. Another wicket. Wickets are falling like 10-pin bowling alley, and one after the other. Even Drupad couldn't impress. Kandari Kings certainly need a partnership. Who will go ahead and stitch the partnership with Akhil Nambiar? Akhil is the lone man who's standing tall with 2 sixes. Wicketkeeper Harsh is supported by Sajid at short point. No ball, and Akhil Nambiar wanted runs, but I think Yash was not ready, and third umpire taken. So toss of the second match shall happen in the innings break. So that's another wicket. Akhil Nambiar. Very unfortunate way to get out in this fashion. Yash Tickle now will have to score runs on his behalf. And Yash Tickle is joined in by Hitesh.
Beautiful way by Arpan to keep pressure. We saw a brilliant over from Danish earlier in the evening. Wide ball. Swing and a miss. 28 for 5. We are in over number 4. Yash Tikal on 0. Hitesh Baria on 0. That's up in the air and that will be a huge 6. A welcome 6. Didn't time it to the perfection, but he ensured that he doesn't get out inside the box. Ball touching the grills and 6 runs will certainly help them. 34 for 5 after 4 overs. Yes, Tickle not out on 6 of 4 with the help of 1 6. Hitesh Baria yet to face a delivery. Danish Farooqi is certainly looking at his bowling options. He would want to rotate his bowlers in such a way that the batters doesn't get settled. Hitesh Baria. And Yash Tickle. Umpire Padmanabh Prabhu talking to the players, explaining them the rules of the game. So we take a short break. Harsh into bowler's roll now. Swell doing the wicket keeping. They've got a slip in place. A lot of expectations were there from skipper Varshid, Drupad. Although Drupad agreed that he's playing this format for the first time. But then, not to forget, Patel brothers are excellent leather ball cricketers. They could have relied on the ground strokes. They still have 24 balls. And if they are able to score another 24, 30 odd runs, great match. Went on his back foot and nudged it on the onside for a single. 35 for 5. Nudging and maneuvering of the ball is the need of the hour, and then hit an occasional boundary on a loose ball. Lefty to lefty, and that was outside the channel, given wide. Beautiful bowling by Harsh. He's bowling to a fielding plan. They've got slip in place, and then they've got a short cover, a mid off, a wideish long off, a deep long off on the offside. Express ball and given wide. Too much pace, creating problem for Harsh. He was bowling a good line, but then he's doing experimentation, which is proving costly for him. Nice little turn imparted on the tennis ball. Headley tennis balls, hard tennis balls in this tournament. Yastickle
He's not out on 6. That's a fantastic shot. Such an eye-pleasing moment. Stand and deliver. High and handsome 6. 43 for 5. Yes, Tickle. Man of the moment. That's a good shot, but finally finds a filter on the way and Yastickle departs. A very good catch taken at deep long on. Sharfuddin Sheikh took that catch. Earlier he bowled an expensive over conceding 14 runs, but now he has taken this catch and brought smiles on the faces of his team members. 6 wickets gone. All monsters are running through Kandari Kings batting side in a jiffy. New batter is Ankit. Tapped it, square of the wicket. That's a safe shot. This shot is very popular in under-arm box cricket. End of over number 5, 45 for 6. Harsh Panchal 1 over 11 runs and 1 wicket. Once more, let me remind you that you need to start your 8th over at the start of 25th minute. Else 2 of your players would be removed and no captain would want to afford that. So I think Tej Mehtab is going to bowl the power play over. Akhil Nambiar and Yash Tickle, they both played very well, but they could have continued their good efforts and finished the innings. Nevertheless, they still have 18 balls to go. Mehtab, a slim and trim boy. Beautiful delivery, stump to stump, and no answer whatsoever. Swept nicely but fielded brilliantly by Sajid. Sajid, an agile fielder. He gave a glimpse of Suresh Raina, the way Raina used to dive and stop the ball in the outfield. 45 for 6. Kandari Kings batting first after winning the toss. Steps forward and chance of a run out. Oh, that was a bad collusion. Golden chance and finally Ankit gets out. A very nasty collusion. It could have ended in a very big injury. But finally, all that begins well ends well. Now comes a new batter. Dhaval Patel. Patel brothers, the Patel twins. .45 for 7. Well, the format of this tournament is 12 to bat, 11 to field. So the tailenders have started arriving, and Kandari Kings certainly in need of runs. They need vitamin R.
who is going to give them that vitamin R. Played on the onside, such a delicate shot. And when it comes from a lefty batter, it's an eye pleasing moment. But finally, double asking for a change in the bat. Right equipment makes the difference. Some people they prefer heavy bats, some people they prefer lighter bats, some people they prefer scoop bats. You can have n number of bats, but you got to have that talent in you to score runs. And that's what Double has done. 46 for 7. Another good delivery, trying to go for run, chance of a run out. And that's the high five moment. Hitesh Baria departs and wicket number 8 gone. Kandari Kings are losing wickets at regular intervals, and full credit to Danish Farooqi and all Monsters team who are self-motivated. It's an autopilot unit. Wide ball. One thing that all Monsters would want to keep a tab on is number of sundries. Another catch, such a diving catch, a stunner, and Dhaval Patel departs. Danish himself took that diving catch. Such a dynamic captain, Danish, young, handsome cricketer, and he's leading from the front. He took 2 wickets. Now he has taken a catch. Yes, because they have taken 26 minutes, remaining 2 overs will be power play overs as per umpires. मैं एक बार फिर से हिंदी में भी रिपीट करता हूं, 25 मिनट के शुरुआत में आपके 8वां ओवर स्टार्ट होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके जो बचे हुए 2 ओवर्स है वो पावर प्ले के ओवर्स बन जाएंगे. थैंक यू. Sufyan is the new batter. 9 wickets have gone down, just 2 more wickets. What Kandari Kings need to do is to play all the 12 balls. They cannot get all out before 8 overs end. That will be a harakiri. Both the batters are new, Sufyan Mansoori and Mark Saini. Wide ball, very well left. Excellent judgment of line and length by this batter Sufyan. Beautiful delivery to keep the batter guessing. The sign in the air, and
Oh, what a catch! Is he a Spider Man? Is he a Superman? He's a Batman. He's a catchman. Sharfuddin. Sharfuddin is like a wall. He reminded me of fielders like John D. Rhodes, Yuvraj Singh. So last batter now, 48 for 10. Mark Saini is joined in by the last player. Excellent fielding by Tej, Harsh, Sohail, Danish, Sharfuddin. Everyone has given the 100%, and the result is evident. Fielding is like mathematics. The more you practice, the more you become perfect. 48 for 10. Sahil is the last man. You are watching Addict Super 5 Championship 2025 inaugural match. Kandari Kings won the toss and decided to bat first. All monsters are bowling. Reverse sweep, and that's a very intelligent way to open your account. 49 for 10. Mark Saini is the batter. Offered the straight bat and brilliantly fielded by RP at the Wadish Midon. Excellent fielding side, all monsters. Trying to find the gap. Oh, that would have been the final nail in the coffin. He survived. Mark said he, considering himself very lucky that he survived that accident. 49 for 10. Last pair. Tejas Kamble is the bowler. Tejas looks speedy like Tejas Express from Mumbai to Goa. Good delivery, chance of a run out, and that's it. 49 for 11, all out. Kandari Kings, 50 is the target to win the match and put 2 points on the points table. So they got all out and will get ready for the toss of the second match. सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैच का यहाँ पर टॉस किया जाएगा। नीटॉन और एक तरफ है एडिक, कॉल इट्स नीटॉन। क्या बात है, फर्स्ट मैच का टॉस जीता है। ओके, डिसीजन बाद में, बट सर दो शब्द इस टूर्नामेंट के बारे में और ओवरऑल हर मतलब बारिश में खेले, अभी विंटर में, अभी हर सीजन में खेलते आ रहे हो, क्या फीलिंग है? अ, ये ग्राउंड बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत सारे रीजंस हैं। और हाँ, मैंने दादा को रिक्वेस्ट किया था कि ये ग्राउंड पे इस बार एक टूर्नामेंट हो जाए, सो लेट्स सी हाउ इट गोस नाउ। क्या बात है, शॉर्ट एंड स्वीट में बोले कि ये ग्राउंड मुझे स्पेशल है। सो ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अभी नेक्स्ट इनिंग में कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, चंद्रकांत शेट्टी सर। थैंक यू।
स्वागत है सभी दर्शकों का एडिक्ट सुपर 5 चैंपियनशिप 2025 में। और टर्फ पे खेली जाने वाली ये टूर्नामेंट, हालांकि कुछ सालों में मुंबई में टर्फ क्रिकेट की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ चुकी है और टर्फ का क्रिकेट, और मैं विजय दादा मुजार इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। टर्फ में मुंबई में चौथा टूर्नामेंट कर रहा है और चारों टूर्नामेंट दादा के द्वारा ही है। सभी का स्वागत होगा। और पहले बैटिंग करते हुए 8 ओवर का ये मुकाबला है और 8 ओवर में 49 रन बने हैं और मैच को जीतने के लिए 50 रनों की आवश्यकता है। जब बैटिंग के लिए आएगी अगली टीम ऑल मॉन्स्टर बनाम कांधारी किंग्स। ये दोनों टीमें ऐसी है कि ओरम क्रिकेट में भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स इन टीमों ने खेली है और टर्फ क्रिकेट में काफ़ी बड़ा नाम है इन टीमों का। और आज जिस तरह से खिलाड़ी खेल रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े सितारे, टर्फ क्रिकेट के बड़े बड़े नाम आज के रात में, कल के रात में और परसों की रात में, तीनों रात यहाँ देखने मिलेंगे। एक अलग क्रिकेट पिछले कुछ सालों में आ चुका है। ओरम क्रिकेट काफ़ी बड़े पैमाने पर मुंबई में खेला जाता है, लेदर बॉल क्रिकेट खेला जाता है, उसके बाद मिट्टी का अंडरआर्म क्रिकेट खेला जाता है। मगर कुछ साल पहले अंडरआर्म क्रिकेट में भी मुंबई की एक क्रांति हुई, उसका नाम था टर्फ क्रिकेट। और टर्फ क्रिकेट की एक बड़ी टूर्नामेंट आप यहाँ आज फिर एक बार देखने जा रहे हैं। एडिक्ट सुपर 5 चैंपियनशिप पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का, आज पहला दिन है इस टूर्नामेंट का। बड़े बड़े सितारे यहाँ नज़र आने वाले हैं और काफ़ी बड़ा संघर्ष देखने मिलता है। क्रिकेट कौन सा भी हो, इस क्रिकेट के खेल की एक अलग ही मज़ा है। और जब वो क्रिकेट मुंबई में हो तो क्रिकेट की मज़ा और कुछ ज़्यादा ही रहती है। और मुंबई का और एक बड़ा क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट, अगले 3 दिनों में आपको देखने मिलेगा। काफ़ी अच्छी तैयारी भी यहाँ की है ऑर्गेनाइजर्स ने, दादा और पूरी टीम ने। और अच्छा टर्फ, हालांकि इस टर्फ पे मैं पहली बार कमेंट्री कर रहा हूँ, मगर इस टर्फ पर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट भी होते हैं। एक पारी खत्म हो चुकी है, दूसरे पारी का आगाज होने जा रहा है। 50 रनों का पीछा करना है और क्रिकेट का खेल ऐसा है, कोई भी लक्ष्य इसमें सुरक्षित नहीं होता। आप कितना भी बड़ा टोटल करो उसे हासिल किया जा सकता है और कितने भी छोटे टोटल में भी आप मैच जीत सकते हैं। ये क्रिकेट का खेल है। श्री साई स्पोर्ट्स पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का हम स्वागत करेंगे। टर्फ क्रिकेट में एडिक्स सुपर 5 चैंपियनशिप, 5 बड़ी टीमें इसमें शामिल है, उनके बीच का ये मुकाबला। और जबकि दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है, दोनों प्रारंभिक बैटर मैदान के ऊपर आ चुके हैं। आसिफ खान एक तरफ है, अभिषेक कदम एक तरफ है और गेंदबाजी के लिए पचास रनों का पीछा करना है। पावर प्ले का पहला ओवर, रन बनाने की कोशिश तो जरूर यहाँ होगी। आसिफ खान बैटिंग के लिए आ चुके हैं। देवांग खुद का पहला ओवर, पारी का पहला ओवर लेके देवांग आ चुके हैं आसिफ बैटिंग के लिए। हालांकि 50 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। संघर्ष तो दोनों तरफ से देखने मिलेगा, दो बड़ी टीमें हैं। ऑल मॉन्स्टर बैटिंग के लिए तैयार होती हुई कांधारी किंग के खिलाफ यहाँ आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देना होगा। हालांकि 50 का पीछा करना है, 50 बड़े भी नहीं है और छोटे भी नहीं है, मजा आएगा। पारी की शुरुआत हल्के हाथों से, सिर्फ यहाँ गेंद को ढकेला, पुश किया, बिंदी गेंद से शुरुआत हुई है इस पारी की। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर या वाइट बॉल करार दिया है अंपायर ने और स्कोर की शुरुआत हो चुकी है 1 रन से। 50 का पीछा करना है टीम ऑल मॉन्स्टर को और उसके लिए आसिफ दिव्यांग के खिलाफ। ये गेंद फिर एक बार बाहर रखी थी ऑफ स्टंप के और उसी के कारण फिर एक बार वाइट बॉल करार दिया गया है। 2 रन स्कोर पर जुट चुके हैं कुल मिलाकर। आज इस टूर्नामेंट में टर्फ क्रिकेट के मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े बड़े सितारे जुड़ जाएंगे, टॉप 5 टीमें, और उनमें टर्फ का चैंपियन
कौन होगा परसों पता चलेगा। इस बार पॉइंट कवर के दिशा में खेलने का प्रयास था, हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला, एक पैर आगे रखा था, वहां से ढकेला गेंद को, 1 रन पूरा करेंगे आसिफ। आसिफ और आसिफ का साथ देने के लिए मैदान के ऊपर अभिषेक कदम है, इनको बैटिंग करनी है। देवांग दूसरी तरफ उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश भी बैटर की होगी। मुंबई में अंडर आर्म क्रिकेट काफी लोकप्रिय है। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, फिर एक बार अंपायर पराग हमारे तरफ मुड़ते हुए व्हाइट बॉल के जरिए और एक रन स्कोर में जुड़ता हुआ, 4 रन बने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर और एक व्हाइट बॉल। थोड़ी सी रणनीति यहां चुक रही है, एक्स्ट्रा के रूप में 4 रन यहां जुड़ चुके हैं, कुल मिलाकर 5 स्कोर। ऑफ स्टंप के बाहर, मगर इस बार सही ठिकाने पर गेंद थी और उसी के कारण एक डॉट बॉल, बिंदी गेंद आई है। प्रयास तो यही है यहां बैटर को रोका जाए, बड़ा स्ट्रोक नहीं मारने दिया जाए इस पहले ओवर में। हालांकि बैटिंग के लिए अभिषेक कदम, ओहो हो, यहाँ फिर एक बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे पर थी और उसी के कारण सम्मान दिया इस गेंद का, रन लेने की कोई कोशिश नहीं। फिर एक बार डॉट बॉल, हालांकि चार यहाँ व्हाइट बॉल करी थी उन्होंने, मगर उसके बाद अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं दिव्यांग। हो कुछ अलग करने का प्रयास था यहाँ अभिषेक कदम इनका, मगर फिर एक बार चुके, अच्छी लाइन और लेन पर वापस आ चुके हैं। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने कुछ व्हाइट बॉल की थी, मगर उसके बाद लगातार 3 डॉट बॉल की है, उसी के कारण स्कोर सिर्फ 5 पर रुका हुआ है। ओहो हो, और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी रही है। 4 बॉल वाइड की उन्होंने, मगर फिर भी पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं बिना कोई विकेट खोए। ऑल मॉन्स्टर बैटिंग करते हुए पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 5। अगर पहले ओवर में एक अलग ऐसा नियम है यहाँ, अगर पहले ओवर में विकेट भी जाता था तो 5 रन माइनस हो सकते थे, और उसी के कारण जो पहले पारी में हुए थे, और उसी के कारण थोड़ा सा संभल कर खेले इस पारी में, और सिर्फ 5 रन बने हैं। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक को खेला है, 1 रन वहां पूरा करेंगे। आसिफ इनके बैट से आता हुआ ये स्ट्रोक, स्कोर 6 पर जाता हुआ। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं हितेश बारिया, एक बड़ा नाम है ये भी। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे का प्रयास मगर रोका, 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे। 1 रन से स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ, 7 रन का टर्फ क्रिकेट हम देख रहे हैं, इस क्रिकेट का भी एक अलग मजा है। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, स्ट्रोक तो अच्छा है, रन कितने मिलेंगे या देखना होगा, और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, षटकार, 6 रन। 6 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 13 पर जा चुका है। हालांकि पहले ओवर में थोड़ा सा संभल कर खेला दोनों बैटर ने, 5 रन माइनस होने का डर भी था, और उसी के कारण जैसे ही दूसरा ओवर शुरू हुआ, यह बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश शुरू हुई है। आसिफ इनके बैट से आता हुआ ये बड़ा स्ट्रोक, फिर एक बार सामने की दिशा में खेलने का प्रयास कामयाब नहीं रहा, और यहां पकड़े गए, फंस गए आसिफ, और विकेट का पतन। कभी खुशी कभी गम, पहले गेंद पर छक्का जड़ा था, दूसरी गेंद पर विकेट आ चुका है। जैनम, ये भी एक काफी बड़ा नाम है और काफी लोकप्रिय खिलाड़ी है टर्फ क्रिकेट में, उन्होंने ये पकड़ा है कैच। हितेश बारिया यहां विकेट लेते हुए, साजिद आ चुके हैं। अच्छी गेंद जड़ में करने का प्रयास रहा था यहां कि ओवर थ्रो के जरिए रन मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे 14 पर पहुंच चुका है ये स्कोर। एक तरफ साजिद है, दूसरी तरफ अभिषेक कदम, हितेश बारिया, रोकने का प्रयास है यहाँ, 50 रनों का पीछा करना है। हालांकि 8 ओवर का ये मुकाबला है और 8 ओवर में 50 रनों का पीछा करना है। फुल टॉस गेंद, स्ट्रोक तो खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में,
वह अच्छी फील्डिंग का नजारा पे देखने मिला। 1 रन से स्कोर आगे, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 15 पर पहुंचा है। देखते देखते 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 50 का करना है पीछा ऑल मॉन्स्टर टीम को। 15 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 6 ओवर का खेल शेष है और 35 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, मगर विकेट यहाँ आएंगे, डॉट बॉल यहाँ कुछ आ जाएंगी तो दबाव यहाँ से भी बना सकती है टीम कांधारी किंग्स। एक बड़ा नाम है, हालांकि सुप्रीमो ट्रॉफी में भी काफी जबरदस्त प्रदर्शन कुछ। ओहो हो, यहाँ बड़ा स्ट्रोक तो जड़ा है मगर बॉक्स के बाहर ज्यादा ऊपर से गया है और उसी के कारण यहां और एक विकेट का पतन हो चुका है। अभिषेक कदम वापस लौटेंगे। आपको इस अंडर आर्म क्रिकेट में कुछ दायरे में ही स्ट्रोक खेलने होते हैं, ज्यादा ऊपर से स्ट्रोक खेला गया, मुझे लगता है कुछ सेंटीमीटर से ऊपर गया और उसी के कारण ये आउट होकर वापस लौटेंगे अभी। और एक झटका यहाँ लगा है, हालांकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है मगर विकेट आएंगे तो दबाव बढ़ेगा। अभी भी 35 गेंदें और 35 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अंकित के हाथ में गेंद थमा दी है और अंकित जैसे ही आए पहले गेंद पर विकेट भी हासिल की है। बैटिंग के लिए शरफू अच्छी गेंद अंकित की और एक डॉट बॉल और एक बिंदी गेंद। जैसे जैसे डॉट बॉल आएगी मजा आएगा इस मैच में। ओवरम क्रिकेट में भी अच्छा नाम है ये। और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बैट का किनारा और हितेश ने गेंद को रोका है और वहां रन लेने की कोई कोशिश नहीं हुई। और एक डॉट बॉल, अंकित दबाव बढ़ा रहे हैं। यस, इस ओवर में काफी जबरदस्त कमबैक किया है टीम कांधारी किंग ने, क्योंकि इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया है अब तक। 15 पर रुका हुआ है इस बार। और एक बिंदी गेंद। ये क्रिकेट का खेल है, इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता और यहाँ ऐसे लग रहा था ये आसानी से मैच जीत रही है टीम ऑल मॉन्स्टर, मगर एक विकेट आया, उसके बाद थोड़ा सा दबाव बढ़ाया अंकित ने। बिंदी गेंद, इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला है कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां पहुंचते हुए। जरा देखिए फील्डर को, शरफू तो आउट हो चुके हैं। जरा फील्डर को देखिए, फील्डर को प्लीज। यस, सही है आप। यस, बेहतरीन कैच। ये कैच याद रहेगा, एक बड़े खिलाड़ी का ये विकेट था। कोशिश बेहतरीन थी मगर थोड़ा सा सावधानी से, सभी से विनती है। 15 पर रुका हुआ है स्कोर। क्या गेंदबाजी रही है अंकित की इस ओवर में। ओहो हो, और एक बेहतरीन गेंद। और इस ओवर में एक भी रन नहीं आया और इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज रहे हैं अंकित। तालियां होनी चाहिए यार, क्या गेंदबाजी की है और ऐसे वक्त गेंदबाजी की है जब टीम को जरूरत थी। कमबैक किया, 2 बड़े विकेट भी हासिल किए, मेडन ओवर भी किया है अंकित। मेडन ओवर, 2 विकेट, मगर अभी भी ये मैच मुकाबला खत्म नहीं हुआ। आने वाले 5 ओवर उसमें रन बनाने हैं 35। 3 विकेट का नुकसान हो चुका है।
निजाम आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। निजाम खान खुद का पहला और पारी का चौथा ओवर। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक सामने की दिशा में खेला है, गेंद को भेजा हवाई यात्रा के लिए, 6 रनों के लिए सिक्सर। 21 पर पहुंचा है ये स्कोर। ओवर नंबर 4। पहली गेंद पर हल्ला बोला है यहां बैटर ने, साजिद फारूकी। हालांकि इसके पहले ओवर में कोई रन नहीं आया था, मेडन ओवर गया था, मगर जैसे इस ओवर की शुरुआत हुई पहली गेंद पर छक्का जड़ा है यहां साजिद ने। अगली गेंद सही ठिकाने पर नहीं थी, मगर यहां रन लेने का प्रयास, वाइट बॉल भी होगा, वाइट और एक रन मिलेगा, 2 रन से स्कोर आगे। फिर एक बार इस छक्के ने फिर एक बार ऑल मास्टर को भी मैच में लाया है। जैसे कि पिछले ओवर में जैसे कोई भी रन अंकित ने नहीं दिया, मेडन ओवर किया, 2 विकेट जड़े उन्होंने लिए थे, उसी के कारण कांधारी किंग भी मैच में आ चुकी थी और अब फिर एक बार ऑल मास्टर भी मैच में आ चुकी है। हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में ढकेला, इस गेंद को 1 रन पूरा करेंगे। जुनेद शरीफ साहब की टीम है ऑल मास्टर, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विकी कांधारी साहब, अर्जुन कांधारी साहब, इनकी टीम है कांधारी किंग्स, और इन दोनों बड़ी टीमों के बीच का ये पहला मुकाबला। और ये गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी, उठाकर खेलना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। बिंदी गेंद, इसी की आवश्यकता है इस वक्त टीम कांधारी किंग को। डॉट बॉल यहाँ आनी जरूरी है, 27 में 26 चाहिए, मगर इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइट बॉल, 1 रन से स्कोर आगे। 25 पर पहुंच चुका है, अभी भी 25 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम ऑल मास्टर को। ऑफ स्टंप के बाहर पराग शिंदे साहब इस ओवर में थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहे हैं, और एक वाइट बॉल। क्रिकेट का यह अद्भुत खेल। फिर एक बार लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला है सामने की दिशा में, देखना होगा कितने रन वहां मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग देखने मिली और अच्छा थ्रो भी, 1 रन से स्कोर आगे। एक से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर 27 पर पहुंच चुका है। अभी भी 26 गेंदें शेष है इस मैच को जीतने के लिए और 23 रनों की आवश्यकता है। ओ, ये नो बॉल दी गई है। वाइट बॉल, यस वाइट बॉल, स्कोर 1 रन से आगे। मैदान के ऊपर अगर देखा जाए तो साजिद खेल रहे हैं 8 पर, दानिश खेल रहे हैं 1 रन पर। दानिश और साजिद। नो बॉल, लॉफ्टेड स्ट्रोक सामने की दिशा में, फिर एक बार गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजा था, इस बार भी रन मिलेंगे। 6 सिक्सर। और एक बड़ा स्ट्रोक यहां आता हुआ दानिश के बैट से, इस बार ये स्ट्रोक आ चुका है दानिश के बैट से आता हुआ ये बड़ा स्ट्रोक। रन बने हैं 35, हालांकि चौथा और प्रगति पर है, 25 गेंदें अभी भी शेष है और 15 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी टूर्नामेंट, अच्छा क्रिकेट। इस बार भी सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, मगर क्या कैच पकड़ा है वहां, जबरदस्त बेहतरीन कैच। जैनम थे वहां और जैनम के द्वारा पकड़ा गया एक बेहतरीन कैच और एक विकेट का पतन। चौथा विकेट आ चुका है, हालांकि 4 ओवर का खेल यहां खत्म हो चुका है। अच्छी बैटिंग हुई है, 4 विकेट वापिस जरूर जा चुके हैं, मगर 35 रन बने इन 4 ओवर में। आने वाले 4 ओवर में रन बनाने हैं 15। साहिल साहिल है गेंदबाजी के लिए साजिद के खिलाफ। इस बार भी
उड़ाया इस गेंद को, भेज दिया सामने की दिशा में हमारे कैमरामैन के पास। यहां भी रन मिलेंगे 6। सिक्सर जड़ा है फिर एक बार। इस मैच को थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही है यहाँ टीम ऑल मॉन्स्टर। अच्छी बैटिंग हो रही है, हालांकि विकेट जाने के बाद फिर भी एक बार बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास हो रहा है। 41 पर स्कोर पहुंच चुका है, अभी भी 22 गेंदें शेष है और 9 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर करने का प्रयास, इस बार भी वाइड बॉल करार दिया है। 42 रन बने हैं, 50 का पीछा करना है ऑल मॉन्स्टर को। और एक बड़ा हिट, मगर वहां आप फील्डर पहुंचेंगे या नहीं, मगर ये गेंद भी जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रन, सिक्सर जड़ दिया गया है। सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। और एक बड़ा हिट, और ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए क्या बैटिंग हुई है। हालांकि 5वें ओवर में ही इस मैच को खत्म कर दिया है ऑल मॉन्स्टर टीम ने। काफी जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी रही, उसके बाद अच्छी बैटिंग भी उन्होंने की और उसी के कारण एक बड़ा दानिश फारूकी, जिन्होंने 2 विकेट भी हासिल किए और 7 रन भी बनाया है। और दानिश फारूकी है इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच के खिताब से उन्हें नवाजा जाएगा। और जिस तरह से ये शुरुआत रही है ऑल मॉन्स्टर टीम की, काफी जबरदस्त प्रदर्शन।